بات کریں گے اسلام آباد کچہری کے باہر ہونے والے دھماکے کے حوالے سے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکہ، 12 افراد اس دھماکے میں شہید، 27 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ خودکش بمبار کا سر مل گیا ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ اسلام آباد کچہری کے باہر بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید ہوئے اس دھماکے میں، 27 زخمی ہوئے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب کچہری میں معمول کے کاموں کے دوران بریک تھی اور لوگ کچہری کے باہر جمع تھے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے، 27 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ خودکش بمبار کا سر بھی مل گیا ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس دھماکے کے حوالے سے تمام ثبوت میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ ان دھماکوں کے آپس میں جو لنکس ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، اور ان تمام تر معاملات کو جلد تحقیقات کر کے میڈیا کے سامنے تمام ثبوت بھی رکھیں گے۔ اسلام آباد کچہری کے باہر بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا خودکش دھماکہ، جس میں 12 افراد شہید ہوئے، 27 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عثمان جبار اس وقت پیمز ہسپتال کے باہر موجود ہیں، ان سے مزید وہاں پہ صورتحال جانیں گے۔ عثمان، ابھی آپ بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ پیمز ہسپتال میں موجود ہیں، زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور کس طرح ان کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آج صبح جو افسوسناک واقعہ اس کے بعد جتنے بھی زخمی تمام زخمی جو یہ پیمز اسپتال یہاں پر لائے گئے تھے، یہاں پر صبح جتنے بھی زخمی لائے گئے تھے ان میں جن کی حالت تشویشناک تھی، وہ ان میں سے 12 جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جو ترجمان پیمز ہے ڈاکٹر مبشر ڈہا، ان کے مطابق اس وقت جو پیمز میں 30 سے قریب جو افراد ہیں وہ زخمی زیر علاج ہیں، جن کا یہاں پر علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ جو افراد شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد 12 بتائی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ای ڈی پیمز ہے ڈاکٹر رانا عمران سکندر، ان کی جانب سے خود جو ہے وہ جو ایمرجنسی ہے وہاں اس وارڈ میں موجود ہیں اور تمام تر جو انتظامات ہیں ان کا خود جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پیمز اسپتال کی انتظامیہ ہے انہیں یہاں پر صبح سے ہی جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ ایمرجنسی جو ہے نافذ کر دی گئی تھی، اور تمام جو ڈاکٹرز تھے ان کو یہاں پر ان کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، اور جو پیمز کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر تمام زخمیوں کو جب لایا گیا تو ان کے لیے جو علاج کی تمام جو صورتحال جو علاج کی جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو فراہم کر دی گئی تھی، اور اس وقت بھی ان کے مطابق جو زخمی ہیں ان کو بہتر علاج مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دن کے وقت جو وفاقی وزیر برائے قانون وہ یہاں پر آئے تھے، ان کی جانب سے جو وکلاء تھے ان سے ملاقاتیں کی گئی، جو یہاں پر زخمی تھے ان کی عیادت کی گئی۔ اب جبکہ اس وقت جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی وہ بھی کچھ دیر بعد یہاں پر جو ہے آئیں گے اور جو یہاں پر زخمی ہیں ان کی عیادت کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیوں کے رہنما ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جی اچھا عثمان، کس نوعیت کے زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا دھماکہ تھا، اور ایسے دھماکے میں لوگوں کو جھلسنے کے بھی زیادہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ کس قسم کے زخمی ہیں؟ کیا زیادہ جھلسے ہوئے ہیں یا جو کم زخمی جو یہاں پر وہ بھی لائے گئے ہیں؟ اس حوالے سے بتائے گا علاج معالجہ ان کا کس طرز پر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے ترجمان پیمز سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جو زخمی تھے جو صبح لائے گئے تھے ان میں سے جو 8 افراد کی جو ہے نا وہ حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جن میں سے جو 4 افراد تھے وہ یہاں پر دم توڑ گئے تھے، جبکہ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ 4 مزید جو زخمی ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، ان کو جو یہاں پر جو آئی سی یو ہے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو ای ڈی پیمز ہیں وہ خود یہاں پر موجود ہیں، باقی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے جو زخمی ہیں ان کی علاج کے لیے یہ تمام تر انتظامات ہے وہ کیے گئے ہیں، اور ان کو بہترین علاج مہیا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں ان کی جو علاج ہے ان کا وہ بہتر ہو سکے، اور اس کے لیے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ پہلے سے کر دیے گئے تھے۔ اس سے قبل بھی جب اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو تمام تر جو زخمی ہوتے ہیں وہ پیمز ہی لائے جاتے ہیں۔ پیمز جو ہے یہاں پر کا بڑا اسپتال ہے، اور اٹک سے لے کر تقریباً کشمیر تک جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ یہاں پر زخمی ہوتے ہیں یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ان کو پیمز ہی لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بڑا اسپتال ہے، یہاں پر
पर तमाम तर जो इंतजामात हैं वो पहले से ही होते हैं, और इनको जब ये सुबह वाक़या हो गया था तो उनकी जानिब से कहा गया था कि EDPMs की जानिब से वाज़ेह हदायत कर दी गई थी कि जो इमरजेंसी है वो नाफिज कर दी गई, और तमाम तर जो ज़ख्मी थे उनको बेहतर इलाज मुहैया करने की हदायत जारी की गई थी। इसके अलावा इनका कहना था कि जो मरीज़ों के प्यारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपने जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं उनसे मिलने के लिए भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी रश है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सियासी लोग हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी के जो नैयर बुखारी है वो इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी अयादत कर रहे हैं, जबकि हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि आपसे कुछ देर बाद जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर पेम्स अस्पताल आएंगे और यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनकी अयादत करेंगे। जी अच्छा, तो उस्मान, इस सिलसिले में क्या लिस्टें भी आवेज़ा की गई हैं? क्योंकि इस तरह के किसी भी वाक़े के बाद एक क्योस की सूरत हाल होती है, अफरा तफरी होती है, लोग अपने प्यारों को ढूंढ भी रहे होते हैं। वैसे तो अब काफ़ी देर गुजर चुकी है इस हादसे को, लेकिन लिस्टें आवेज़ा की गई हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं वो पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, उनके नामों के हवाले से। जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हो तो उसके बाद हमने देखा, जब हम यहाँ पर ख़ुद मैं सुबह में भी आया तो यहाँ पर मैं ख़ुद इमरजेंसी में गया, वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी रश था और जो लोग थे उस अफरा तफरी का आलम था। तमाम जो एम्बुलेंस थे और रेस्क्यू 112 की जो गाड़ियाँ थी, जो उनका अमला था, वो यहाँ पर जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ पर लाया जा रहा था। उस वक्त काफ़ी रश था अंदर। मैं खुद वहाँ पर गया, वहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद थे, सिक्योरिटी अफसरान मौजूद थे, और जो EDPMs थे मैंने उनसे बात की, जो तर्जुमान थे उनसे मैंने बात की, और उनका ये कहना था कि इस वक्त चूँकि रश है और बाकी जो पिम्स अस्पताल है जिसकी इमरजेंसी यहाँ पर डेली 5 से 8 हज़ार लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं इलाज के घर से, और वो सब इधर ही आके पिम्स में ही इलाज उनका होता है। तो यहाँ पहले से भी रश था, काफ़ी रश था यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद जो EDPMs थे और जो दीगर अमला था उनकी जानिब से यहाँ पर जो एक इमरजेंसी के अंदर जो वार्ड है, सर्जिकल वार्ड, वो अलग से इसके लिए मुख्तस कर दिया गया था, और वहाँ पर जितने भी ज़ख्मी जो इस बम धमाके के नतीजे में जो ज़ख्मी होते हैं उनको यहाँ पर लाया गया, और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे वो सिर्फ इन्हीं के लिए मुख्तस कर दिए गए थे कि जितने ज़ख्मी वहाँ सर आएंगे। इनकी पहले कोशिश ये थी कि जो ज़्यादा ज़ख्मी है उनको पहले उनका इलाज किया जाए, लेकिन अब जब मैंने खुद देखा तो यहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी मिकदार में डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे, और जो बाकी लोग हैं जो लवाकिन हैं उनकी जानिब से भी जो है यहाँ पर हमने देखा इमरजेंसी वार्ड के बाहर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, जो उनके लवाकिन भी और जो ज़ख्मी हैं उनके भी जो प्यारे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। उस सबके अस्पताल में काफ़ी रश है, और जो इमरजेंसी जो यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है उसके बाहर जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने प्यारों से मिलने के लिए बेताब है। अलबत्ता अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी सबसे पहले कोशिश ये है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी जान बचाई जाए, उनको बेहतर इलाज मुहैया किया जाए, और उन्हें शहरी से अपील की है कि वो बिला ज़रूरत जो है इमरजेंसी की तरफ ना आए, और जो उनके प्यारे हैं पहले उनका इलाज हो सके, उनके इलाज जब बेहतर होगा तो उनको उनसे प्यारों से मुलाकात कर दी जाएगी। अलबत्ता जो EDPMs हैं उनका ये कहना था कि उनकी पहली कोशिश ये है कि जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं उनको बेहतरीन इलाज की सहूलियात जो है मुहैया की जा सके। जी, जैसे कि उस्मान आप भी बता रहे हैं कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, ज़ख्मियों को यहाँ पर लाया गया था, तो बहुत बड़ी तादाद में जो ज़ख्मी थे वो भी लाए गए थे, और उनके लवाहिकीन जो उनके अहले खाना थे वो भी यहाँ पहुँचे थे, तो एक रश की सूरत हाल है। हस्पताल के बाहर भी सिक्योरिटी के कुछ अज़ाफ़ी इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ अफसोसनाक वाक़या, उसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद के जो पिम्स अस्पताल की अपनी जो इंतज़ामिया है और जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई अलर्ट हो गई थी, जबकि पिम्स अस्पताल के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो बड़े मॉल्स हैं और जो बड़े तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद के तमाम जो तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस जबकि जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे यहाँ पर हम मैन ब्लू एयर की बात करें, चाहे हम यहाँ पर कश्मीर हाईवे से मुतसिल जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है मुख्तलिफ मकामात पर दिखाई दे रही है, जबकि इस्लामाबाद का जो पिम्स अस्पताल है इसके तमाम जो गेट है यहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जो जवान हैं वो भी इस वक्त तैनात हैं, और इस्लामाबाद जो पिम्स है इसकी जो अपनी सिक्योरिटी है, जो अपना अमला है वो भी तमाम तर जो गेट है वहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ जो दाखिली गेट है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, जबकि जो इस्लामाबाद जो पिम्स अस्पताल के अंदर जो इमरजेंसी वार्ड है, जो नई इमरजेंसी बनाई गई थी वो, और इसके अलावा जो दीगर OPD है वहाँ भी जो इनकी अपनी सिक्योरिटी के जो इनके एहलकार हैं वो मौजूद हैं, और ये तमाम जो इनकी कोशिश है कि यहाँ पर जितने भी शहरी आएँ उनकी जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद शहर में जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमने इससे जब मैं यहाँ पर आ रहा था हमने रास्ते में देखा कि तमाम जो बड़े बड़े शाहराएँ थी और जो बड़े तजारती मराकज़ थे वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी, तो जो इस्लामाबाद पुलिस पाक फ़ौज के जवान हैं वो मुख्तलिफ शाहराहों पर सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं। जी अच्छा उस्मान, आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगी कितने ज़ख्मी हैं जो पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं जिनका इलाज यहाँ पे हो रहा है, और जो शहीद हुए हैं उनके हवाले से भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस हवाले से जब मैंने तर्जुमान जो पिम्स है डॉक्टर मुबशर डाहा से पूछा तो उनका कहना था कि यहाँ पर इस वक्त जो हमें अपडेट दी गई थी वो 30 जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जो ज़ख्मी हैं वो यहाँ पर ज़ेर इलाज है, जिनमें से 4 पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर स्पेसिफिक तादाद पुलिस एहलकारों की कितनी है और बाकी शहरी कितने, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम फिलहाल ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर कितने जो यहाँ पर जो मरीज़ लाए गए हैं, जो ज़ख्मी लाए गए हैं वो उनका पुलिस एहलकार हैं या जो दीगर शहरी। हमारी कोशिश है कि जितने एहलकार यहाँ पर लाए गए हैं उनको सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जाए। जब इनकी हालत स्टेबल हो जाएगी उसके बाद हम इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो उसके बाद इस हवाले से हम बाकायदा जो है आदाद शुमार जारी कर देंगे। अलबत्ता इससे कबल जो तर्जुमान ईडी और जो तर्जुमान पिम्स थे उनकी जानिब से आदाद शुमार जो दिए गए थे अवाइल में वो 21 बताए गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि मजीद यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं वो लाए गए थे अस्पताल में, जबकि इसका अब जब हम कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई उनका कहना था अब तक तकरीबन 30 जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 12 शुहदा जो है वो उनकी शहादत हो चुकी है। वो इनमें से 4 कुछ ऐसे थे जब उनको यहाँ पर लाया गया तो वो रास्ते में दम तोड़ गए थे, जबकि कुछ यहाँ पर जो इलाज के दौरान जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी, 3 अफराद ऐसे थे जो यहाँ पर वो शहीद हो चुके थे। जबकि इनकी ये कहना है कि जितने भी ज़ख्मी हैं उनका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और उनके लिए तमाम तरह जो इंतजाम हैं वो पहले से कर लिए गए थे, क्योंकि जब यहाँ पर ये वाक़े की इतला मिली इंतजामिया को। आप तफसीलात बता रहे हैं अस्पताल के अंदर और बाहर की, आप हमारे साथ ही रहेगा। नईम जंजुआ जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नईम, CCTV फुटेज भी सामने आई है और खुदकुश हमलावर का सर भी मिला है, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? CCTV फुटेज भी सामने आ गई है और खुद का हमलावर का जो सर है वो तो जिस वक्त ये वाकया पेश आया था उस वक्त जो जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ पे इसका सर मौजूद था और उसी वक्त जो जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो पुलिस एहलकार मौजूद थे और उसके बाद यहाँ पे जो तमाम जो तहकीकाती अफसरान जो थे वो फौरी तौर पर पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पे करीब ही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के बड़े ऑफिस हैं, यहाँ पे DIG ऑफिस भी यहाँ करीब ही मौजूद है। तो वहाँ से जो लोग आए थे उन्होंने फौरी तौर पर खुद का हमलावर का जो सर था उसको वहां से उठा लिया था और अभी जो है यहाँ पे फोरेंसिक की गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं, साथ साथ नादरा की एक गाड़ी भी मौजूद है। जो एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं उनका फोरेंसिक के लिए जो है उनको जमा किया जा रहा है। उनके अपने जो बॉक्सेस हैं उनमें तमाम जो शवाहिद हैं वो रखे जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम टीमें जो है वो मौजूद हैं। DIG ऑपरेशन जवाद तारिक भी अभी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनके अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो जिस तरह पहले सिचुएशन थी जब ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद तमाम अफसरान भी यहाँ पे मौजूद फौरी तौर पर पहुंच गए थे, अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे 1 से 2 टीमें जो है वो काम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंसेज भी यहाँ पे मौजूद है और तहकीकात जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं। अब तक जितने भी शवाहिद थे वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सुबह ब्लास्ट के बाद यहाँ पे पहुंच गई थी और अभी तक यहाँ पे मौजूद है और गाय बगाए जो है वो इस इलाके का सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी चीज अगर कोई यहाँ पे है मौजूद है तो उसको भी देखा जा सके। खुद का हमलावर जब यहाँ पे आया था उसके हवाले से मोहसिन नकवी ने भी बताया यहाँ पे आके मीडिया को कि वो तकरीबन 10 मिनट जो है वो यहाँ पे अंदर कचहरी में दाखिल होने की कोशिश करता रहा। जो मेन गेट है कचहरी का उससे उसने जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सरकार काफी तादाद में मौजूद थे, उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिला और उसके बाद जो है ये जो गेट है उससे तकरीबन 10 से 12 फुट के फासले पर उसने खुद को ब्लास्ट किया। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी मिली है और उसकी नंबर प्लेट भी जो है वो भी कलेक्ट कर ली गई है। उसके हवाले से भी तहकीकात जारी है और इसके साथ साथ जो यहाँ से अज़ा मिले हैं उनके DNA टेस्ट के लिए उनके नमूने जो हैं वो भी हासिल करके बॉक्सेस में डाल लिए गए हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि जो भी इस वाक़े में मुलव्वस हुआ वो चाहे मुल्क के अंदर से हो चाहे मुल्क के बाहर से हो उसको आनी हाथों से निपटा जाएगा। और अब देखा ये जा रहा है कि ये खुद का हमलावर कहाँ से आया ये शहर के बाहर से उसी वक्त आया था या शहर के अंदर कहीं मौजूद था और उसने सारी अपनी प्लानिंग और तैयारी वहाँ पे की और वहाँ से ये आके उसने यहाँ पे ये ब्लास्ट किया है। और साथ ही साथ जो बारूद के हवाले से जो है वो भी देखा जाएगा कि इस वाक़े में कितना बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल हुआ, कौन सा बारूदी मवाद था जो इस वाक़े में इस्तेमाल हुआ और उसकी मिक़दार कितनी ज़्यादा थी। इस हवाले से जो है वो तहकीकाती जो टीमें हैं उन्होंने फाइल इकट्ठे कर लिए हैं और इसके बाद जो है वो जो जब ये अपनी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी तो वो सारी सामने लाई जाएगी। जी अच्छा, अभी जैसे कि अभी आप भी बता रहे हैं कि तमाम शवाहिद इकट्ठे तो कर लिए गए हैं, रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, वो बताई जाएगी, लेकिन जो जगह है जहां पर ये वाक़या पेश आया उस जगह को क्या अभी तक कॉर्डन ऑफ रखा गया है या उस जगह को लोगों की आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया है?
जी, उस जगह की अगर बात करें तो ये कचहरी इस्लामाबाद कचहरी है। हाल ही में 2-3 साल हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुई है। इससे पहले ये एफेड में होती थी। इसके साथ जो है वो सर्विस रोड है, इसके ऊपर सरकारी दफातर भी साथ साथ मौजूद हैं इस कचहरी के साथ। तो ये जो रास्ता है ये आम आमदोरफ्त है, क्योंकि मेन जो रोड है कश्मीर हाईवे वो तो उस वक्त भी खुली हुई थी जब ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद उसको बंद नहीं किया गया था, लेकिन ये जो सर्विस रोड है इसको बंद कर दिया गया था। ये सर्विस रोड काफी इसकी लंबाई है, ये इस्लाम से बाहर से दाखिल होती है और ये तकरीबन 0 पॉइंट तक ये सर्विस रोड आती है। लेकिन जो G11 का जो रास्ता है उधर से लेकर और जो कचहरी के साथ जो इसकी पार्किंग है वहां से इसको बंद किया गया था, जो अभी तक बंद है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और अपने जो शवाहिद हैं ये की जा रही है कि कोई छोटी सी छोटी चीज भी अगर उनको मिलती है तो उसको भी फौरी तौर पर कलेक्ट करके अपने बॉक्सेस में महफूज किया जा सके और उसके ऊपर जो है वो मजीद तहकीकात की जा सके। इसलिए जो है वो जब तक ये टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है, पुलिस की जो तहकीकाती टीमें मौजूद हैं, जब तक ये टीमें मौजूद होंगी ये रास्ता जो है वो आम आमदोरफ्त के लिए बंद रखा जाएगा। इससे जो कचहरी की लेफ्ट साइड का जो रास्ता है उसके पास जो चौक है वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। इसी तरह जो राइट साइड का जो रास्ता आता है उधर भी जो पहला चौक आता है उधर से ट्रैफिक एहलकारों ने जो उस रास्ते को बंद करके वहां से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रखा है और वो जो है वो अपना जो G11 सेक्टर है उसके अंदर से ट्रैफिक जो है वो जा सकती है। अब जब तक ये फोरेंसिक टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, वो जब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती और अपने जो फाइनल नहीं कर लगती जो अपनी कलेक्शन है एविडेंस की उस वक्त तक जो है ये रास्ता इसको बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाय बगाए कुछ शख्सियात के विजिट भी हो रहे हैं। इसलिए जो है ये रास्ता उस वक्त तक बंद रखा जाएगा जब तक शवाहिद इकट्ठे नहीं हो जाते। अच्छा नहीं, जैसे कि ये भी बताया गया कि खुदकुश हमलावर की शहर में मौजूदगी की इत्तलात थी, इस तरह की कोई इत्तलात थी कि कोई खुदकुश हमलावर शहर में दाखिल हुए हैं, लेकिन इन इत्तलात के बाद क्या कुछ ये अंदाज़ा था कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई होती है तो वो किन इलाकों में हो सकती है? और क्या जैसे कि कचहरी के बाहर ये हुआ है, यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया, तो क्या इन इलाकों में सिक्योरिटी के इजाफी इंतजामात कोई किए गए थे पहले से? अगर कचहरी की बात की जाए तो जिस तरह कचहरी में तमाम अदालतें मौजूद हैं, जितने भी मुल्ज़मान पेश किए जाते हैं, जो भी साइलीन आते हैं वो अपने केसेस के हवाले से आते हैं, तो एक बड़ी तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की यहाँ पे मौजूद होती है कि पेशी एहलकार जो है वो अपने अपने केसेस लेके यहाँ पे आते हैं और ज़ाहिर उनके पास असला भी होता है, वो अपने तौर पर मुकम्मल तैयार होके यहाँ पे आते हैं। और साथ ही साथ जो की सिक्योरिटी है उसके लिए भी यहाँ पे 20 से 22 जो एहलकार हैं वो गेट के अंदर और बाहर मौजूद होते हैं। जो जिस तरह आपने बात की कि इस खुदकश हमलावर के बारे में इतलात थी कि ये शहर के अंदर ही मौजूद था, तो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट तो मौजूद हैं। जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि इस तरह के थ्रेट्स तो आते रहते हैं और उसके हवाले से जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किए जाते रहते हैं। ये गुज़िश्ता जो हमने हफ्ता देखा है इसमें जो इस एरिया के करीब करीब के जो इलाके हैं उनमें काफी ज्यादा सर्च ऑपरेशन किए गए। तरनौल का इलाका है, G11 का इलाका है, G10 का इलाका है, इसमें सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे थे। और ठीक है, नहीं आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया और उस्मान जब्बार पिम्स अस्पताल की सूरत हाल बता रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।